हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इन वीडियोस के थ्रू थोड़ा बहुत ज़रूर समझ पा रहे होंगे। कोई और ऑप्शन भी नहीं है अभी हमारे पास, इसी से ही हम कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत समझने की। स्टिल जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम लोग मिलेंगे, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट। इन बिटवीन भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम. You can WhatsApp me your problems, right? Don't hesitate. Fine. So let's start with our next topic, that is change of state. My dear students, अभी तक हमने डिस्कस किया था what is matter, right? Anything which occupies some space and has some mass. Then we discussed the 4 characteristics of the matter. Then we discussed about the concept of temperature, which measures the degree of hotness in the body. Then we discussed about 3 physical states of the matter: solids, liquids and gas. So my next topic is change of state. My dear students, ये तो अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में कि बेसिकली there are 3 general states of the matter: solids, liquids and the gases, right? अभी डिस्कस किया था हमने प्रीवियस टॉपिक में कि matter can exist in the 3 physical states which is known as solids, liquids and gases. So now the question arises कि matter जो 3 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर जनरली एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, बट अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर देते हो तो वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वाटर विच इज़ जनरली नॉर्मली एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड as well as into the vapors. That means matter or a single substance may exist in 3 physical forms. मतलब एक सिंगल जो मैटर है, एक सिंगल जो सब्सटेंस है, वो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? एंड वन फॉर्म ऑफ when matter changes its one physical state from the another, from one state to the another, that is known as change of state. Okay? तो हमारा जो मेजर टॉपिक है आज का वो है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में मुझे क्या डिस्कस करना है कि सॉलिड लिक्विड्स में कैसे कन्वर्ट होता है, या लिक्विड वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होता है, या लिक्विड सॉलिड्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होंगे, या फिर सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में कैसे कन्वर्ट होगा। मेरे को बेसिकली यही टर्म्स आज डिस्कस करनी है इन द चेंज ऑफ द स्टेट। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर जनरली एग्जिस्ट इन द 3 फिजिकल फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड्स एंड द गैसेस। फिर मैंने आपको कहा कि एक स्टेट ऑफ द मैटर, वन स्टेट ऑफ द मैटर can be changed into the another state. You can change one form of the matter, one state of the matter into the another. But ये changes होंगे कैसे? By applying 2 factors. One is temperature and the second is pressure, or you can change or vary both the factors. मतलब one state of the matter can be converted into the another by applying the temperature or the pressure. मतलब you can change solid into liquid or liquid into gas or solid into gas by applying the temperature or the pressure or even both, right? तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि how can you change the state of the matter, what are the factors responsible for it, so you will say
Two factors are responsible for changing one state to the another, that is temperature and pressure. And the second thing is, my dear students, what do you actually mean by change of state? Change of the matter from one physical state to the another. जब एक मैटर की स्टेट अपनी दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट. ओके, so when one form of the matter from its one physical state gets converted to another is known as change of state, right? When one form of the matter converted into the another form is known as change of state. I hope it's clear to you now कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा एम क्या है. We are trying to convert one state of the matter into the another. It may be from any form, solid to liquid, liquid to gas, solid to gas, or any of the form. Okay, and how we will bring out these changes? What are the factors? Temperature and pressure. अब मुझे क्या सीखना है या सिखाना है कि कोई भी फैक्टर अप्लाई करते ही एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, कुछ पार्टिकल्स कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डिस्कस करना है. कि जब आप टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो मैटर में ऐसा क्या हो जाता है कि सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या फिर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. कुछ तो होता होगा पार्टिकल्स के अंदर, कोई ना कोई चेंजेस तो आते होंगे, वो चेंजेस हमने डिस्कस करने हैं. आई होप हमने क्या पढ़ना है ये ज़रूर आपको क्लियर हो गया. आइए, सो हम पहला हम डिस्कस करते हैं दैट चेंज ऑफ द स्टेट of solid into the liquid. My dear students, when solid gets converted into the liquid, that process is known as melting. आइस को आप जैसे ही फ्रिज से बाहर निकालते हो वो मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में कन्वर्ट हो जाती है. आप क्या कहते हो? आइस मेल्ट हो गई. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज मेल्टिंग. या फिर इसको एक और टर्म बोलते हैं फ्यूजन. FUSION, फ्यूजन. When solid gets converted into liquid, this process is known as melting or fusion. So remember, my dear students, what we are going to discuss is melting or fusion. That means I am going to change a state of the matter from the solid into liquid. आइए डिस्कस करते हैं. First of all, what do you mean by melting or fusion? The process in which solid state of the matter gets converted into liquid state, usually by heating, is known as melting or fusion. तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूजन कैसे होता है, मेल्टिंग कैसे होती है. What is melting? The process of change of state from the solid into liquid. So that is known as melting. Okay, my dear students, एक और टर्म हम पढ़ेंगे इसमें, मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे पूरी की पूरी सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटे, हमारे एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर होता है. वो प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर. तो उस 1 एटमॉस्फेयर पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ जिस भी टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट. इसको मैं अभी दोबारा भी डिस्कस करूँगी. ओके, अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई है फ्यूजन की और मेल्टिंग की. सो व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग और फ्यूजन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. ओके, आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर मैंने कुछ क्रश्ड आइस ले ली. राइट, क्रश्ड आइस ले ली मैंने. अराउंड, आप अगर आप वेट कंसीडर करना चाहते हो तो अराउंड 200 ग्राम्स मैंने क्रश्ड आइस को बीकर के अंदर फिल कर लिया. ओके, और मैंने उसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा दिया. फाइन,
इस बीकर में मैंने एक थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है, और धीरे धीरे से बीकर को हीट करना शुरू कर दिया एट अ वेरी लो फ्लेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने 200 ग्राम्स क्रश्ड आइस ले ली, उसी बीकर के अंदर मैंने एक थर्मोमीटर भी अटैच कर दिया, ओके, एंड देन मैंने लो फ्लेम ऑन कर दिया, बर्नर ऑन कर दिया, सो दैट हीटिंग विल बी प्रोवाइडेड। सो व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? आपको क्या ऑब्जर्व होता है बेटा? व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशन दैट सॉलिड्स के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ द आइस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही आप हीट करना शुरू करते हो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की। आपको पहले से कहा था ना कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, कि जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो पहले मैंने बीकर में आइस ली, आइस के अंदर मैंने थर्मोमीटर अटैच किया, वहाँ पे लो फ्लेम प्रोवाइड करना शुरू किया। जैसे ही मैंने फ्लेम प्रोवाइड करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाते ही आइस के जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, उनकी मूव करने की टेंडेंसी, उनकी वाइब्रेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो गई। वो अपनी अपनी पोजीशंस पर वाइब्रेट करने लगे, और जैसे जैसे वाइब्रेशंस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड द पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर। दैट मीन्स सॉलिड्स इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स। और मैंने टेम्परेचर नोट किया, जैसे थोड़ी सी आइस मेल्ट होनी शुरू हुई ना, मैंने थर्मोमीटर में देखा टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और हीटिंग प्रोवाइड हो रही है। आइस के जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ती चली जा रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो पार्टिकल्स के अंदर मूव करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होती जा रही है। टेम्परेचर और आया, मूव करने की टेंडेंसी और आई, टेम्परेचर और आया, मूव करने की टेंडेंसी और आई। बट मैं देख रही हूँ हीटिंग तो कॉन्टिन्यूस चल रही है, और थर्मोमीटर में देखती हूँ तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही अटका है। ये तो बड़ी कमाल की बात है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। अगर आप कॉन्टिन्यूस हीट कर रहे हो, टेम्परेचर पहले जब जैसे ही थोड़ी सी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ, मैंने टेम्परेचर नोट किया था 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद हीटिंग कॉन्टिन्यूड है, मगर टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा? बड़ी हैरानी की बात है। आप हीटिंग कर रहे हो, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो फिर वो हीट एनर्जी जहाँ का रही है, दैट हीट एनर्जी is gained, is absorbed by the particles of the ice. That heat energy is contained within the beaker itself. वो पार्टिकल्स अपने अंदर एनर्जी छिपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, हिडन एनर्जी है। और जैसे ही उन पार्टिकल्स के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि they can move from one position to the another, they gets completely converted into ice. They gets completely converted into water. So जैसे ही पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, मैंने अभी टेम्परेचर देखा just 0 डिग्री सेल्सियस, बट आफ्टर इट the temperature will keep on increasing with the further increase in the temperature. मतलब जब तक पूरी की पूरी आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ नहीं रहा था, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी जा रही थी वो पार्टिकल्स गेन करते जा रहे थे, ताकि वो अपने आसपास वालों से दूर भाग सके, एनर्जी गेन करके उनसे छुड़ा के मूव करने की टेंडेंसी गेन कर सके। और जैसे ही उनके अंदर इतनी एनर्जी गेन हुई,
they start moving from one position to the another. That means if they are moving from one position to the another, solids gets completely converted into liquids. After that, with the further increase in the temperature, there will be an increase in the temperature in the thermometers. But until or unless whole of the ice gets converted into the water, the temperature will remain fixed, will remain constant at the 0 degree Celsius. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आइस ली, आइस के अंदर थर्मोमीटर लिया और स्लो हीटिंग प्रोवाइड की. हीट देने से क्या हुआ, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगे, धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लगी. और मैंने थर्मोमीटर में फटाफट से टेम्परेचर देखा 0 डिग्री सेल्सियस. लेकिन हीटिंग कॉन्टिन्यूड है, बट स्टिल द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट द 0 डिग्री सेल्सियस. जैसे फिर मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया, मैं बड़ी स्ट्रेंजर मुझे फील हुआ कि हीटिंग तो कॉन्टिन्यूड है बट देयर इज़ नो इंक्रीज इन द टेम्परेचर. व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली? यस, हीटिंग कॉन्टिन्यूड है, टेम्परेचर आप अप्लाई कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ रही है, लेकिन इतनी वो गेन करते रहते हैं एनर्जी, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते, वो सारी एनर्जी खुद ही गेन करते रहते हैं. और जैसे ही उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि दे कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, दैट मीन्स नाउ दे गेट्स कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. और उस टाइम भी अगर मैं टेम्परेचर नोट करती हूँ तो दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. सो द टेम्परेचर एट विच solid gets completely converted into the liquid is known as melting point. तो अब आप समझ गए बेटा melting point क्या होता है. एक ऐसा टेम्परेचर थर्मोमीटर में जो नोट करूँगी जिस पर पूरी की पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और जो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था, वो टेम्परेचर, वो एनर्जी फिर कहाँ जा रही थी बेटा? That energy will be absorbed by the particles of the ice to overcome the forces of attraction among the particles, so that they can diffuse, they can move from one position to the another. वो particles gain कर रहे थे, hidden energy की form में store कर रहे थे. And my dear students, वो जो hidden energy है उसी को ही कहते हैं latent heat of fusion. उसी को ही हम क्या बोलते हैं? latent heat of फ्यूजन. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है मेरे बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन चेंज 1 यूनिट मास ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड्स. ठीक है, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होना कि हम 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो आई होप इट इज़ वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स. जल्दी से एक बार मुझे रिपीट करके बता दो कि मैंने क्या किया. सबसे पहले मैंने क्या लिया था? आइस. फिर उसमें क्या अटैच किया? थर्मोमीटर. देन मैंने क्या अप्लाई किया? फ्लेम, बर्नर ऑन अ वेरी लो फ्लेम. जैसे ही टेम्परेचर दिया, आइस थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हुई. टेम्परेचर कितना नोट किया? 0 डिग्री सेल्सियस. और हीटिंग चल रही है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है उनके बीच में वीक हो रहे हैं, राइट. और वो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उनकी मूव करने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है. टेम्परेचर मैं नोट कर रही हूँ अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही उनके अंदर इतनी हीट एनर्जी स्टोर हो गई दैट दे कैन ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर. सच that stage at which solid gets completely converted into the liquid, that temperature at which this change takes place is known as melting point. तो और वो जो एनर्जी उनके अंदर स्टोर हो रही थी ना, that energy is latent heat of fusion. Okay, so define latent heat of fusion. hidden energy जो particles के अंदर स्टोर है, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हीट एनर्जी तो चाहिए ना. वो जितनी हीट एनर्जी चाहिए सॉलिड को बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक नोट लिखवाया है नोट्स में.
कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ अ मेजर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। इसका मतलब क्या है बेटा? सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट या किसी भी टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट क्या मेजर करता है कि उसके अंदर कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। बेटा अगर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ रही है ना, उसको तोड़ने के लिए, फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो मतलब उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट तो एक टेम्परेचर होता है ना जिस पे कन्वर्ट हो जाता है। अगर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो आपको तो बहुत सारी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको मेल्ट कराने के लिए, है ना। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट क्या मेजर करता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। ओके,